चलो, so should we start? We have solved yesterday illustration number 13, right? So 14th को solve करना है, बराबर ना? आया ना? फॅन ऑन कर ना. कुठलं बटन आहे फॅनचं? चलो, illustration number 14, पेज नंबर 330 एंड पेज नंबर 328, ऐसे दो पेज नंबर है. ऑनलाइन फ्रेंड्स, कैन एनीबडी कंफर्म? आई एम नॉट गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड. कंफर्मेशन करेगा कोई? ऑल ओके सर. ऑल ओके ना? ओके. So illustration number 14, the following figures are supplied to you by contractor for the year ending 31st December 21. Work in progress has been given. So yesterday what we solved 3 problems, it was related to the contract which were newly started. Now this is started in previous period and something is coming as a work in progress, as an opening work in progress in current period, right? So work in progress दिए है, closing work in progress become opening work in progress for the next period. Cash received from contractee 55,000 minus कर दिया 30,000 outer column. During the year wages was paid, material was brought, working expenses were incurred, material issued from stores, administrative expenses, plant, material returned to supplier, material returned to stores, work certified, contract finished, profit taken upon contract and advance from contractee. Prepare contract ledger account, the contractee's account, and show the WIP as it will appear in the balance sheet. ठीक है? So थोड़ा सा अलग है problem, but yes we can take the twist. इसमें जो twist है वो understand कर सकते हैं. चलो, आज attendance क्यों कम है इतना? Any reason? हाँ? नहीं असं नाही. त्यांना तर नाही येणार. Any reason why attendance is low? So preparing for tomorrow's function? Oh. Or preparing, few might be preparing for tomorrow's function also, na? Because online is also attendance is less today. सर स्पीड चेक करा ना एकदा. हाँ? स्पीड चेक करा ना एकदा. आवाज नाही येते गणेश तुमचा. टेस्ट स्पीड टेस्ट करा ना एकदा. चलो, in the books of company contract account. सर स्क्रीन स्टक आहे. स्क्रीन काय स्टक आहे? स्टक आहे. हो. ओके. हो रहा है अभी मूव? Is it moving now? Yes sir. Is it moving now? Yes sir. Yes. Should we start late comers? क्या हुआ आज एकदम सब ग्रुप लेट आ गए? नाश्ता करने के लिए गए, भूख लग गई थी. चलो, पर्टिकुलर्स
amount rupees, particulars amount rupees. Sorry. कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया है क्या उन्होंने? पीरियड फ्रॉम पीरियड टू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, कैश रिसीव्ड. चलो, should we start? Latecomers, we are on illustration number 14. Yesterday we completed up to 13. Illustration number 16 was given as an homework. तो पहले 14, 15 solve करते हैं, then 16 का कुछ issue रहेगा तो then we'll solve it. Otherwise we'll move to the next illustration. So we have been asked to prepare a contract account. Again, we have been asked to prepare a contractee account. Simultaneously contractee account भी बनाना है. ठीक है. Let's start one by one. Now see what they have given, work in progress. Now this work in progress, these figures are as on 31st December 21. So 1st January 22 से लेना है. Period starting from 1st Jan 22. बराबर. And this is a closing WIP. So this closing WIP will become opening WIP. To opening WIP, work in progress. कितना है? 85,000. 85,000. 85,000. ठीक है. Now this cash received from contractee 55,000 है. So contractee account में buy balance brought down. Buy balance brought down. Opening stock कितना पैसा मिला था? 55,000. Buy balance brought down 50. Contractee account में. Okay. Now one by one element. During the year 22, wages 8,500. So two wages 8,500. Two wages 8,500. Next, two material bought 6,000. Two material bought 8,000. कितना है? 6,000. 6,000. After that, working expenses 1,500. Two working expenses 1,500. Next, material issued from stores. कितना स्टोर से इशू किया? 10,500. To material issued from stores 10,500. 10,500. Next, administrative expenses 1,250, but they are saying that 250 are chargeable to profit and loss account. Means this is not related to contract. Out of 1,250, 250 is chargeable to profit and loss account, not chargeable to contract account. Contract account को नहीं देना है, profit and loss account को transfer करना है. To admin expenses bracket में 1,250 minus 250 1,000 rupees. Got it? Because that will be transferred to profit and loss account. Contract account के debit में जाएगा, profit and loss account के debit में जाएगा. Next, plant 2,500. Now plant में कुछ adjustment दिया है क्या?
ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, सो तो डेप्रिसिएशन रहेगा टू प्लांट 2500, प्लांट 2500. Okay, this is, we assume that this is related to depreciation. This is plant दिया है and they have not given any closing balance also. So total plant which has been issued is completely consumed. ये depreciation ही हो सकता है. ठीक है. Material return to supplier. Now some material is returned to supplier from contract. So by दो तीन लाइन छोड़ना है ऊपर. By material return to supplier. सप्लायर को दे दिया डायरेक्टली. कितना है वो? 450, बराबर ना? 450 है ना? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 450 एंड मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स. समथिंग इज रिटर्न टू सप्लायर, समथिंग इज रिटर्न टू स्टोर्स. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाएगा. 550. ठीक है. Next, work certified 15,000 by WIP, by WIP, work certified. कितना है? Inner column 15,000. Inner column 15,000. Contract finished. Now this contract is completely done also. 22,500. This contract is completely done. So by contractee account, दो तीन लाइन छोड़ के by contractee account 22,000 complete हो गया है. 22,000 कितना है? 500 है क्या? 22,500. 22,500. प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया है. टू प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अलग है ना कुछ. कितना है? 11,500. सो हम लोग प्रॉफिट निकालते थे टू नेट प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन. यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 22,500 यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में आएगा. टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना है? 22,500. ये 22,500, दिस 22,500 and subsequently they say contract is finished. 22,500 contract close होगा. Profit taken from contract, ये profit कितना आ गया? To profit from contract 11,500 and advances from contractee. contractee से advance लिया है तो contractee account credit में जाएगा. बाय कैश. कैश पेमेंट किया ना कॉन्ट्रैक्टी ने. कितना? 40,000. बस कॉन्ट्रैक्ट कैश इधर कुछ कहीं पे भी नहीं आएगा. नथिंग विल कम एज अ कैश फ्रॉम दिस एलिमेंट. डन. एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. एनी एलिमेंट दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना अभी. वंस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड नोशनल कुछ नहीं रहता है ना, नेट प्रॉफिट रहता है. सो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ये भी लिख सकते हैं नोशनल से बदले नेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद नोशनल कुछ नहीं है ना. आइदर देयर विल बी अ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और देयर विल बी अ नेट लॉस. देयर कॅनॉट बी अ नोशनल प्रॉफिट वन्स कॉन्ट्रॅक्ट इज कंप्लीटेड. आता बिल्डिंग तयार झाली, कॉन्ट्रॅक्टर देऊन टाकले ओनरला. बेटर क्लोज ना. व्हाट इज नोशनल इनटू दैट? ठीक है. सो व्हाट इज रिमेनिंग इज दैट वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क अनसर्टिफाइड. सो बैलेंस फिगर हम लोग डालेंगे इधर वर्क अनसर्टिफाइड के लिए. सो कितना आता है? इनर कॉलम में लिख लेते हैं 15,000. Work uncertified is coming to 88,000. This is balancing figure.
work completed but uncertified. Understood? See, again I am, what we have done, again I am repeating. Opening WIP ले लिया 85,000, उसमें से कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में से 55,000. Subsequently, this transaction has happened. Wages, material bought out, expenses, material issued from stores, admin expenses, to plant depreciation on plant, work certified has been given 15,000. They have not given any work uncertified. ठीक है, material return कर दिया, material return to stores भी कर दिया. Now this two element is coming as a new element. They have directly said that profit taken from contract. So this contract is completed. और कितना profit आया है? 11,500, which we have written over here. To net profit from contract 11,500. And they have also contract finished, मतलब पैसा पूरा आ गया, settle हो चुका है 22,500 का. By contractee account 22,500, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया 22,500. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था 55,000, कॉन्ट्रैक्ट 22,000 से सेटल हो गया. ओके, नाउ वी हैव टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. लेट्स क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. एक तो टैली होना चाहिए, ये टैली नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट टैलिंग. सो बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट? द वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क कंप्लीटेड बट सर्टिफिकेशन इसका मिला नहीं है. सो 1,26,500 माइनस sum of all these elements. क्या हो गया? हाँ, sum of all these elements 88,000. 88,000. Understood? So contract account completed. और यहाँ पे contract account भी complete कर लेते हैं. To balance carried down. To balance carried down. 72,500. Any question over here? Any question over here? हाँ, ये कहाँ से आया है? ये क्या है इधर? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 55,000. ये इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है. दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड. इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है ये. कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड रह सकता है ना. देगा कुछ पेंटिंग बिंटिंग का कोना भी ना ढीला रहेगा, वो रिपेयर करके वो सर्टिफाई भी करके देगा. वर्क कंप्लीटेड है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड. पेमेंट नहीं मिलेगा ना तब तक, जब तक वो सर्टिफाई करके नहीं देगा तब तक रहेगा ना. हम भी जाते घर लेने के लिए गए, घर ले लिया, कुछ हमको डिफेक्ट लग गया है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देते. वर्क कंप्लीटेड है, अभी थोड़ा सा इधर पेंट निकल गया, इधर ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया, सर्टिफिकेट होल्ड करके रखा है. दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल केस इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस. ठीक है. अब बैलेंस शीट कैसे दिखाई गया? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोला है उन्होंने करने के लिए, ये मैं इधर ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ ये नहीं. वर्क इन प्रोग्रेस कितना है अपना? सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड दोनों मिला के 1,03,000. और कितना उसमें से कैश रिसीव्ड लेस कैश रिसीव्ड कितना है? बैलेंसिंग फिगर 72,500. यही दो एलिमेंट है जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में दिखेगा. दैट्स इट. एक्सट्रैक्ट मतलब सिलेक्टेड आइटम, नॉट फुल्ली. फुल टैलीड बैलेंस शीट नहीं करना है अपने को. ठीक है. एनी क्वेश्चन ऑनलाइन फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Online friends, any question on this? No, sir. Okay. यहाँ पे offline? No. Let's go to illustration number next. या टाइम चाहिए आपको? 2 मिनट चाहिए लिखने के लिए पूरा?
लिख लो. ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो इसका यूज भी नहीं करना पड़ा अपने को. वर्क सर्टिफाइड वैल्यू लिख लिया तो अच्छी बात है. वर्क सर्टिफाइड 15,000, अनसर्टिफाइड 88,000, कैश रिसीव्ड 40,000. दैट्स इट. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं दिया है. ठीक है. चलो, let's go to next illustration. Number 15. Illustration number 15. The information given under has been extracted from the books of contractor relating to contract for 3,75,000. So contract कितने का है? 3,75,000. Year 1, 2 and 3. So continuous period का information दिया है. Year 1, 2 and 3. ठीक है. Material, direct expenses, indirect expenses, wages, total work certified, total work uncertified, plant. The value of plant at the end of year 1 4,000, year 2 at the end of year 3 1,000. It is customary to pay 90% of cash of the amount of work certified. Prepare contract account, show how the figures will appear in the balance sheet. ठीक है. So let's prepare in the books of company contract account. 3 साल का है अभी. सो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना है अपने को. ईयर वन है ना ये. फॉर पीरियड फ्रॉम ईयर 1 नहीं लिखते. ईयर पीरियड फॉर ईयर 1 then it will come year 2, then we will have year 3. Should we start? So year 1 का कर लेंगे हम लोग. Year सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. ज़्यादा झमेला. कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है? 3,75,000. सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 3,75,000. कॉन्ट्रैक्ट ईयर 1 के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3,75,000. नाउ ईयर बाय ईयर. टू मटेरियल 45,000. टू मटेरियल 45,000. Next, two direct expenses 1,750. Two direct expenses 1,750. 1,750. 1,750. Next, indirect expenses 750. Two indirect expenses 750.
2 wages 42,500. 2 wages 42,500. वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना है 87,500 बराबर ना 87,500. यहाँ पे भी आएगा बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड इनर कॉलम 87,500 वर्क अनसर्टिफाइड. कुछ रहा तो लिखेंगे नहीं तो विल गो अहेड. वर्क अनसर्टिफाइड इज 0. So 87,500 will come outer side. Plant 5,000. So यहाँ पे लिखेंगे to plant 5,000 और at the year end plant का वैल्यू कितना है closing value of plant is 4,000 by closing value of plant. Closing value of plant कितना है 4,000 रुपये. So automatically depreciation आ गया debit side में. Agreed? बराबर. और कुछ बाकी है एडजस्टमेंट है कुछ नो एडजस्टमेंट. चलो इसको नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस फाइंड आउट करते हैं. क्या है प्रॉफिट है क्या लॉस है प्रॉफिट है क्या लॉस है 91,000 क्रेडिट साइड और यहाँ पे 95,000. सो देयर इज अ लॉस ओवर हियर 95,000 बाय loss transfer to costing P&L account. Loss transfer to balancing figure है ये. Loss transfer to costing profit and loss account को. So यहाँ पे nothing remains. कुछ आगे carry forward नहीं nothing no loss रहेगा तो total transfer to profit and loss account. हाँ तो यहाँ पे मैंने वही किया ना 5,000 प्लांट वैल्यू ले लिया 4,000. सो बैलेंसिंग फिगर 1,000 ही तो आता है. आ गए ना. कितना आ गया है ऐसे लिखो चलो नहीं तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,000. कुछ फर्क पड़ता नहीं यहाँ पे कुछ नहीं आएगा दैट्स इट. ये कैसे निकला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 माइनस 4,000 वन एंड द सेम है कुछ अलग नहीं किया. स्क्रीन स्टक झाली आहे का सगळ्यांची सॉरी सर स्क्रीन स्टक झाली आय थिंक स्क्रीन स्टक हो गया है ठीक है. आता हलते हैं. इज इट मूविंग नाउ Yes, sir. हां सर इट्स मूविंग नाउ ठीक बताते जाओ ऐसा स्टक हो गया तो. सो कंप्लीटेड ईयर 1. सो ईयर 2 में चलते हैं. ईयर 2 में चलते दिस विल रिमेन एज इट इज. ईयर 2 ओपनिंग WIP वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड दोनों मिला के कितना है 87,500. टू ओपनिंग WIP 87,500 बराबर. जो इसका क्लोजिंग WIP था दिस वाज बाय क्लोजिंग WIP 87,500
which will become opening WIP 87,500. नेक्स्ट ईयर कैरी ऑन होगा ना, जब तक कंप्लीट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट तब तक. यस और नो? क्या ऐसे नहीं नेक्स्ट ईयर गया तो फिर से जीरो से शुरू करना है? नहीं ना. आफ्टर दैट नाउ वन बाय वन एक एक लेंगे. मटेरियल 55,000. टू मटेरियल 55,000. टू direct expenses. To direct expenses 6250. Next, to indirect expenses 1000. To indirect expenses 1000. Next, to wages 57,500. To wages 57,500. वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? देखो 282,500. वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे 282,500. यहाँ पे भी आ जाएगा. बाय WIP वर्क सर्टिफाइड 282,500. 282,500. वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड इज हाउ मच? 5,000. सो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 287,500. बराबर ना? 287,500. प्लांट टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आएगा? 4,000 माइनस 2,500 ना रे? 4,000 minus 2,500 है ना क्लोजिंग बैलेंस. एट द एंड वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 2,500. सो 1,500 is the depreciation value. Depreciation on plant 1,500. अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो क्या करते? यहाँ पे 4,000 लेते या ये बाजू में 2,500 करते. डन. वर्क अनसर्टिफाइड इज 5,000 rupees. Now what they are saying, it is customary to pay 90% of cash from the amount of work certified. So cash कितना received है? 90%. इसका 90%. 250 to 250. बराबर ना? ऊपर भी लिख सकते थे. कैश रिसीव्ड इसका 90%. ठीक है. सो शुड वी फाइंड आउट नोशनल प्रॉफिट, नोशनल लॉस? कुछ क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है ना? कितना है? टू नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट कैरिड डाउन. नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 78,750. बराबर. नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 78,750. आया सबका? ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स सपोर्ट करिएगा प्लीज. नाउ बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है? 78,750. अब इसमें से कितना ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कितना रिजर्व है? टू ट्रांसफर टू P&L, टू ट्रांसफर टू रिजर्व. कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कितना P&L में लेके जाना है, वो डिसाइड करना है. सो क्या है फॉर्मूला उसका? देखो, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. कितना परसेंट है? हाँ 75%. बराबर ना?
4,000 कहाँ से लिया? वही तुम्हें इधर एक्सप्लेन भी कर रहा था ना. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ऑडिट से बाहर निकलो. द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द ईयर एंड इज हाउ मच? 4,000. सो 5,000 का 4,000 हो गया. सो दूसरे साल में 4,000 माइनस 2,500 है. So how much amount will be transferred? Since amount, so working note number 1, computation of notional profit to be transferred to P&L. Since degree of completion is more than 50%, बराबर ना? 2/3 of notional profit will be transferred. So will be transferred to profit and loss account. So formula क्या है उसका? Notional profit into 2/3 into cash received divided by work certified. How much is notional profit? 78,750 into 2/3 into cash received 254,250 divided by work certified 282,500. बराबर? पक्का? $47,250 will be transferred to profit and loss account, and balance of this will be transferred to reserve account. 31,500. Understood? पक्का? Now this should be very clear. इसमें अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, then there is a genuine problem in understanding logic. Done? Now we will go for year 3. थर्ड ईयर में जाएंगे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल रिमेन सेम. कितना है? 3,75,000. टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग WIP. कितना है ओपनिंग WIP? 282,500 ना? 287,500. इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग. एग्रीड? लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग. और यहाँ पे जो रिजर्व है, ये ट्रांसफर होगा P&L को 47,250, एंड ये जो रिजर्व है ये यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन फ्रॉम रिजर्व. रिजर्व से आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन फ्रॉम रिजर्व 31,500. by balance carried down from reserve, or opening balance of reserve to by opening balance of reserve 31,500. जैसे ये WIP लेके आ गए, वैसे ये रिजर्व अमाउंट भी लेके आना है, बट क्रेडिट साइड में. ये नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है लोगों से, रिजर्व लाते नहीं, गड़बड़ वही होता है, एंड देन प्रॉब्लम में मिस्टेक होता है. अंडरस्टूड? WIP तो लेके आते हैं, वो पता होता है कि WIP लाना है, बट ये जो रिजर्व में जो डाल के रखा है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, बट दिस इज रिजर्व, ये इधर यहाँ पे लेके आना है, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है 31,500. अंडरस्टूड? पक्का? ओके. नाउ लेट्स गो वन बाय वन फॉर एलिमेंट. मटेरियल कितना है? 31,500. मटेरियल टू मटेरियल 31,500. After that, to
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 2250 ना. नेक्स्ट wages 42,500, two wages 42,500. After wages, work certified 3,75,000. So 3,75,000 काम कंप्लीट हो गया. वर्क सर्टिफाइड 3,75,000 बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी. वर्क सर्टिफाइड WIP नहीं लिख सकते ना, कंप्लीट हो गया अभी. 3,75,000 बराबर. वर्क सर्टिफाइड ब्रैकेट में वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड. आफ्टर दैट वर्क अनसर्टिफाइड कुछ नहीं है. There is nothing to be work uncertified. Anything to depreciation on plant. कितना आएगा? 2,500 माइनस 1,000 है क्या? 2,500 माइनस 1,500. ठीक है, खत्म. चलो क्लोज कर देते हैं. नोशनल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जाएगा? प्रॉफिट है क्या? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L, टू नेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू P&L कितना है? 41,250. खत्म. Done? Last? Understood? So now what kind of problem you have done? Contract starting in current year. Yesterday. Today we solved contract was started in previous year but completed in current year. And now this problem, contract continued for 2-3 years. Done? Pakka? Any query online friends? Online friends, any query? सर व्यू थोड़ा क्लियर नहीं है सर. हाँ सॉरी. सर व्यू एकदम असं ब्लरी आहे सर. नहीं आवाज नहीं येते सुकन्या तुमचा. सर स्क्रीन ब्लर है. व्हाट दे क्या बोल रहे हो आप? स्क्रीन ब्लर है सर. स्क्रीन ब्लर आहे सर. स्क्रीन स्क्रीन ब्लर आहे. नाउ आई थिंक राउटर का भी प्रॉब्लम निकाल दिया है यार. पूरा स्पीड से आना चाहिए. स्पीड से दिख तो रहा है मुझे. इंटरनेट का स्पीड अच्छा है अभी. वी कैनॉट ब्लेम इंटरनेट नाउ. इंस्टीट्यूट के स्पीड को ब्लेम नहीं कर सकते. 71 Mbps इज वेरी वेरी गुड स्पीड. सर It's depreciation really किती very घेतलं good. plan? Huh? We cannot blame institute now. They have changed the router. Sukanya, सर
फ्लक्च्युएटिंग आहे सर, मध्येच ब्लर होतंय, मध्येच क्लिअर होतंय, असं आहे सर. थोडं थोडं फ्लक्च्युएटिंग आहे. No, but I have tested now. अभी last week I agree there was इज issue इट at ओनली मी, फक्त मलाच असं ब्लरी दिसतंय का सगळ्यांना दिसतंय? सर्वांनाच दिसतंय. others are facing problem. Yeah, Yes, sir. अभी 71 Mbps पे भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है. सर डेप्रिसिएशन किती घेतलंय प्लांटचं? नहीं, अभी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते. 72 Mbps है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीड. चलो हाँ 3,75,000. ये क्या है? टोटल वर्क सर्टिफाइड 3,75,000. डन पक्का. शुड वी प्रोसीड? शुड वी प्रोसीड? थर्ड इयरला नोशनल प्रॉफिट नाही आहे, दॅट इज नेट प्रॉफिट. ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. नथिंग. संपलं ना कॉन्ट्रॅक्ट संपलं. आता काय पुढे करा, संपलं. नाही काही गरज नाही. कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर कशाला ठेवायचं ते? डायरेक्टली टोटल विल बी ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ना. वन्स कॉन्ट्रॅक्ट इज फुल्ली कंप्लीट देन व्हॉट इज नोशनल अँड व्हॉट इज रिझर्व? नथिंग. टोटल ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. डन. सी 5 फंडामेंटल आहे. इफ देर इज एनी लॉस, transfer to profit and loss account. If there is contract is not completed, second point, contract is not completed, then notional profit hai, then we have to transfer something to profit and loss account and something will go to reserve account. That will depend on degree of completion. And once contract is fully completed, reserve account चा काही संबंध नाही. Everything will be transferred to profit and loss account. Very good question, but अंडरस्टैंडिंग क्लीन हो गया इसका वजह से. ओके. इलुस्ट्रेशन नंबर 16. वी आर सेइंग दैट आप लोग आए नहीं क्योंकि इलुस्ट्रेशन नंबर 16 आपको होमवर्क दिया था, आपने किया नहीं, इसलिए आप लोग आए नहीं. ऐसा इनिशियली डिस्कशन चल रहा था. सो डन. नहीं सर, वी हैव. इलुस्ट्रेशन कंप्लीटेड. सॉल्व करना है कि नहीं करना है? नाही करणार सर. इलुस्ट्रेशन नंबर 16 सॉल्व करना है नहीं करना है? नहीं करना है सर. केलं नाही मग तुम्ही? केलं सर आम्ही. केलं का? गुड. सो नो क्वेरी. नो सर. नो क्वेरी. नहीं ना. अभी जिन्होंने नहीं किया उनको क्या क्वेरी आएगा? जिन्होंने सॉल्व किया कोई कुछ क्वेरी है? नो सर. मॅडम काय प्रॉब्लेम? तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर. नाही ती इकडची पद्धत सोडा. आपण आपल्या आपल्या पद्धतीने करायचं. लॉस झाला, ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जे आज शिकलो जो आपण, लॉस आहे, विल बी ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व 16 और शुड आई सॉल्व इट? अगर आप बोलोगे प्रोफेशनल स्टूडेंट बिहेवियर नहीं करोगे तो भुगतोगे. ठीक है. होमवर्क डू इट. नाउ गोइंग टू इलुस्ट्रेशन नंबर 17. अभी भी मौका है, मैं 2 मिनट के लिए अभी भी टाइम देता हूँ. 16 का सॉल्व करना है कि नहीं करना है? कर लो फिर घर पे. अब आप ही तो बोल रहे हैं ना करना है. Illustration number 17. The following is the trial balance of Premier Construction Company engaged on the execution of contract number 747 for the year ended 31st December 22. Contract is account, amount rupees, amount received, building, creditors. See, now this is a trial balance. Bank balance, capital account, material, wages, expenses, plant. टैली हो गया ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीटेड. द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 was commenced on 1st January 22.
Material costing 170 were sent to the site of the contract, but those of 6,000 were destroyed in the accident. Wages of rupees 1,80,000 were paid during the year. Plant costing 50,000 was used on the contract all through the year. Plant with a cost of rupees 2 lakh was used from 1st January to 30th September and was sent returned to the stores. Material cost rupees 4,000 were on site on 31st December. The contract was for 6 lakhs rupees and the contractee pays 75% of work certified. Work certified was 80% of total contract value at the end of 22. Uncertified was 15,000. Expenses charged to contract are 25% of wages. Plant is depreciated at 10% of entire year. Prepare contract account and balance sheet as on 31st December 22 in books of Premier Construction Company. Now, this is a complete contract. कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, उसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना है एंड ट्रायल बैलेंस शीट भी बनाना है. सो वी हैव टू प्रिपेयर टू एलिमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. चलो, should we start? चलो, let's start one by one. So we have to prepare contract account, balance sheet and profit and loss account for the company. ट्रायल बैलेंस के हिसाब से. Contract account, after that profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड रहता है कि एज ऑन रहता है? हाँ, फॉर द ईयर एंडेड, सो एज ऑन रहता है. फिर एज ऑन बैलेंस शीट रहता है. बैलेंस शीट
चलो, let's start. The following is the trial balance of in the books of Premier Construction Limited. In the books of Premier Construction Limited. Premier Construction Limited. Contract account. Contract number 747 account. Contract number 747 account. For the period 31st December 22. So 1st Jan 22 to 31st December 31st है ना, 31st December 22. 1st Jan को चालू हुआ है कि और कई जगह पे चालू हुआ था? The contract was commenced from 1st January 22. So it started from 1st Jan 22. Period is given over here. ठीक है. So the contract was for how many? 6 lakhs rupees. The contract value is given 6 lakhs rupees. ठीक है. The contractee pays 75% of work certified. जो जितना work certified रहेगा, work certified उसका 75% कैश में मिलेगा, बराबर? Work certified was 80% of contract work. So contract work कितना था? 6 lakhs का, उसका 80%. So हमको 2-3 एलिमेंट एक झटके में मिल गए. Work certified is how much? 80% ना? 80% of 6 lakhs. 80% of 6 lakhs. बराबर? Work certified 80% of 6 lakhs and cash received is how much? 75% of 4,80,000. By WIP आ जाएगा. Is it by WIP? Work certified, work uncertified. Work certified आएगा 4,80,000. Uncertified देखते. चलो, should we move further? Now one by one एक एलिमेंट देखते हैं. अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख रुपया, ठीक है. अमाउंट रिसीव्ड है 3 लाख रुपया. देखते हैं इसका क्या करना है. बिल्डिंग इज 1,60,000. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा क्या ये? नहीं, ये बैलेंस शीट का आइटम है. बैलेंस इमीडिएटली करके लेके जाना है बैलेंस शीट में. बिल्डिंग अमाउंट, बिल्डिंग 1,60,000. बैलेंस शीट के एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में? बिल्डिंग 1,60,000. $1,60,000. 3 लाख रुपए अभी भी ये एलिमेंट का इफेक्ट देना बाकी है. WIP में हम लोग देखेंगे. WIP देते समय अमाउंट रिसीव्ड का इम्पैक्ट आएगा. क्रेडिटर्स 72,000. कहाँ पे जाएगा क्रेडिटर्स से? अभी प्रॉफिट पे अपना फाइनल अकाउंट करते हैं ना, सेम है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे. नथिंग डिफरेंट. पहले एडजस्टमेंट कहाँ पे वैसे ही करते हैं ना आप लोग. एडजस्टमेंट जहाँ पे वो जाके टिक कर लो. जहाँ पे भी एडजस्टमेंट है टिक कर लो. कर लो. आपके फाइनल अकाउंट्स कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? पहले ट्रायल बैलेंस रीड कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट रीड करते हैं, फिर जहाँ पे एडजस्टमेंट है वहाँ पे टिक करके रखते हैं. फिर जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे उसमें. चलो डन. क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड में. आप जिस हिसाब से फाइनल अकाउंट अंडरस्टैंड करते हो, लाइन आइटम कौन सा कहाँ पे लेना है वो हिसाब से करिएगा. ऐसा नहीं कि इसी सीक्वेंस में आना चाहिए. फाइनल अकाउंट करते हो, फाइनल अकाउंट में कैसा शेयर कैपिटल ऊपर आता है, बैलेंस एसेट साइड का एसेट कहाँ पे आता है, वो सब इस हिसाब से करना है तो कर सकते हो.
ऐसा नहीं है कि वैसा ही करना पड़ेगा आपको, बट ये कॉस्टिंग में थोड़ा सा रॉ भी रहेगा बैलेंस शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ओवर हियर. क्रेडिटर्स कितना है? 72,000. नेक्स्ट, बैंक बैलेंस कितना है? 35,000. कहाँ पे आएगा? एसेट साइड, बैंक बैलेंस 35,000. कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपया, कहाँ पे जाएगा? पक्का? कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपया. Everybody is understanding, na? Online friends, hope you people are understanding. Yes, sir. ऑनलाइन फ्रेंड्स गुस्सा है, गुस्सा. मटेरियल 2 लाख रुपया, एडजस्टमेंट है? यस. मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000 वर सेंट टू साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे मटेरियल 2 लाख रुपए का पड़ा है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन यहाँ पे मटेरियल इशू कितना किया ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट को? सो टू कॉन्ट्रैक्ट में टू मटेरियल अकाउंट, टू मटेरियल अकाउंट कितना है? 1,70,000. 1,70,000. ओके. दूसरा एडजस्टमेंट 6,000 वॉज डिस्ट्रॉयड, रुपीज 6,000 वॉज डिस्ट्रॉयड. सो आउट ऑफ 1,70,000 ऑफ विच 6,000 वॉज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट. सो कॉन्ट्रैक्ट तो जाएगा क्या ये? नहीं. सो क्या करेंगे हम लोग? बाय लॉस ऑफ मटेरियल, बाय लॉस ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू, नहीं रे बाबा, ट्रांसफर टू P&L. हाँ, माइनस केलं तरी चालेल. 6,000. नाउ दिस विल क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए यहाँ पे. टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 767 लॉस ऑफ मटेरियल 6,000. बराबर ना? वहां पे अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं? यस और नो? सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वन एलिमेंट. एक कंपनी, जस्ट आई एम ओपनिंग योर आईज, one company may have 10 contracts but P&L will be only one. 10 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल का लॉस होगा 6,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना ये? ऐसे मल्टीपल 10 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे. 10 कॉन्ट्रैक्ट का लॉस अगर होता है तो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, लेकिन लॉस तो हो गए ना. सी, यू आर नॉट गिविंग इफेक्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉस तो हो चुका है. वेर इट विल गो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. अंडरस्टैंडिंग ना कॉन्सेप्ट ना? दिस इज अकाउंटिंग को टर्मिनोलॉजी. आई एम नॉट गुड इन अकाउंट्स. यू पीपल आर गुड, सो उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट, वेजेस कितना है? 1,80,000. यहाँ पे भी 1,80,000, यहाँ पे भी 1,80,000 है. लेकिन यहाँ पे अभी हमारा मटेरियल का एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ ना. सी, बैलेंस शीट में मटेरियल जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. सो कितना था ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस नहीं, मटेरियल ट्रायल बैलेंस में कितना था? 2 लाख रुपया. बराबर. माइनस 1,70,000. बराबर. सो कितना मटेरियल स्टॉक में अभी भी? 30,000. बराबर. एग्रीड? एग्रीड और नॉट? सो टोटल एडजस्टमेंट भी कर लिया, ये भी लिख लिया. डन. ओके. सो ये 2 लाख का पूरा काम कर दिया. वेजेस 1,80,000, 1,80,000, नथिंग टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए. टू वेजेस 1,80,000. डन. नेक्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 50,000. सो यहाँ पे प्लांट कितना है? 2,50,000 का. प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वॉज यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू आउट द ईयर. Plant with the cost of rupees 2 lakh was used from 1st January to 30th September and was returned to the stores. Material
of the cost of 4,000 were on site on 31st December 20. So पहले हम लोग depreciation on plant करेंगे. Working note number 1. Working note number 1. Computation of depreciation on plant. Number A. Plant value rupees 50,000. Plant value rupees 50,000. बराबर ना? Used full year. That is 12 months. बराबर? So depreciation कितना आएगा? So dep is equal to 50,000 into कितना परसेंट है? 10 ना? यहाँ पे दिया है कहीं पे plant is to be depreciated 10% for entire year. Okay? So 50,000 का प्लांट है, पूरे साल कंपनी ने यूज किया है ये कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5,000. अंडरस्टूड? ये नाउ बी पॉइंट. प्लांट वैल्यू रुपीज 2 lakhs. बराबर? यूज्ड फॉर 9 months. बराबर? यूज्ड फॉर 9 months ऑन कॉन्ट्रैक्ट. चलो यूज फॉर 9 month ऑन कॉन्ट्रैक्ट. चलो पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर 12 months निकालेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9 months. बराबर? डेप्रिसिएशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9 months. सो 2 लाख रुपया इंटू 10%. एग्रीड? इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12. कितना आता है? 15,000. एग्रीड? सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सो टोटल डेप ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 757 है ना? 747. A plus B. Who has not understood this? किसको समझ में नहीं आया ये? 20,000. To depreciation on plant. Refer working note number 1. 20,000 रुपए. Who has not understood this? Done? So it means you are very good in accounts, na? Costing में नहीं? हाँ? अकाउंट्स में गुड है? डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कंप्लीट हो गया? डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कंप्लीट हुआ क्या? क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्या? 20,000 रुपये. हाँ, बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा. बैलेंस शीट का इम्पैक्ट देते हैं. चलो ओके, स्टेप बाय स्टेप. बैलेंस शीट. प्लांट वैल्यू कितना है? प्लांट वैल्यू डेबिट साइड में आएगा, एसेट में आएगा. कितना है? 2,50,000 लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. कितना है? 20,000. ठीक है, 20,000 है ना? लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. एंड अभी और क्या बाकी है? देखो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा. हमने यहाँ पे देखो ये पूरा 12 महीने का ट्रांसफर हो गया. यस और नो? 50,000 पे 12 महीने का पूरा ट्रांसफर हो गया. दिस 2 लाख पे 9 months का ही ट्रांसफर हो गया. सो ये 2 लाख का 3 महीने का डेप्रिसिएशन बाकी है. that will go to profit and loss account. To depreciation on plant for 3 months. बराबर ना? क्यों? समवेयर डेप्रिसिएशन तो पूरा 12 महीने का है, सिर्फ प्लांट लेके रखा है. आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 9 महीने के लिए दिया, 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट ने एब्जॉर्ब किया,
3 महीने तो आपके पास पड़ा है, इसका डेप्रिसिएशन तो आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? सो 2 लाख रुपया इंटू 10% इंटू 3/12 कितना आता है? हाँ पक्का 5000, और वो 5000 लाइबिलिटी एसेट साइड में से लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम P&L 5000. सो प्लांट का वैल्यू कितना हो गया आउटर कॉलम? प्लांट का वैल्यू कितना है आउटर कॉलम में? 2,25,000. इंटरेस्टिंग है कि नहीं? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? सो प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया. सर Yes. 3 months वाला कैन यू एक्सप्लेन अगेन? किधर कर दिया ना? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर 3 months P&L में ले लिया ना? या सुकन्या, यू आर सेइंग समथिंग? ये से 3 months का एक्सप्लेन प्लीज अगेन सर. 3 months 3 का क्या? months वाला. देखो प्लांट खरीद लिया आपने, एक प्लांट खरीद लिया, उसका यूज कर दिया 9 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, 3 महीने आपके पास पड़ा रहा, इसका मतलब डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आएगा, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आना चाहिए. बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा फिर वो, अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज जाएगा. बट इफ इट इज नॉट यूज्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट देन बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी इंपैक्टेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो जाना चाहिए, वो लेके गए. यस सर. सो 20,000 इज एब्जॉर्ब्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. देखो सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? नहीं, प्लांट वैल्यू कितना है? प्लांट वैल्यू इज 2,50,000. साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है उस पर? 10%, 25%, नहीं 10%, 25,000 है. अभी प्लांट ने एब्जॉर्ब्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, एब्जॉर्ब्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 20,000, बराबर ना? 20,000. ये एब्जॉर्ब बाय कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 एंड ट्रांसफर टू P&L. बैलेंस 5,000. सो 25 में से ओके. 5,000 खत्म. सो वही 25,000 डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के आइटम में से, देखो बैलेंस शीट के आइटम में से पूरे 25 कर दिए माइनस, यस. 20,000 कॉन्ट्रैक्ट में लेके गए हम्म. एंड 5,000 P&L को इम्पैक्ट देके गए. अच्छा, ओके सर. डन? अंडरस्टूड. पक्का? यस सर. देन ओनली आई विल मूव फर्दर. यस सर. चलो आफ्टर दैट क्या बाकी है? मटेरियल ऑफ कॉस्ट ₹4,000 वर ऑन साइट ऑन 31 December. सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 4,000. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बैलेंस शीट में भी जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन कॉन्ट्रैक्ट 4,000. somebody is disturbing me here. Just hold on. Actually, I'm away. Just give me some time, half an hour. Sorry. So closing stock on contract 4,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है. ओके. एनीथिंग क्या बाकी है फिर अभी? ओके. कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट 6 lakhs हो गए, 75%, 80% ये सब कर लिया. वर्क अनसर्टिफाइड इज हाउ मच? 15,000. सो यहाँ पे हम लोग वर्क सर्टिफाइड 4,80,000, अनसर्टिफाइड 15,000.
work uncertified 15,000. Outer column 4 lakh 95,000. 4,95,000. और कुछ बाकी है. Expenses are charged to contract 25% of wages. So 2 expenses on contract 25% of 1,80,000. बराबर ना? 25% of 1,80,000. $45,000. After that, depreciation हो गया. Completed? Most of the work is completed. देखते हैं भी टैली होता है कि नहीं होगा तो और कोशिश करेंगे. हाँ, ये कौन सा है? ये एक्सपेंसेस कितना है? 47,000. ठीक है. देखो अभी ये एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में हमने क्या क्या, ये 30,000 बाकी है अभी अपना 3 लाख रुपया, उसका एडजस्टमेंट बाकी है. फर्दर 72 कंप्लीटेड, बैंक बैलेंस डन, दिस डन, मटेरियल डन, वेजेस डन, एक्सपेंसेस इज 47,000 और हमने कॉन्ट्रैक्ट में कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 45,000. सो ट्रायल बैलेंस पे एंड एल में कितना जाएगा? 2 एक्सपेंसेस नॉट absorbed by contract, not absorbed by contract. 47,000 minus 45,000, 2,000. बराबर? Done? चलो, now I think we have done all the adjustments. चलो notional profit find out करते कितना है. लॉस है कि प्रॉफिट है? देखो तो लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है. टू नोशनल प्रॉफिट. $90,000. नोशनल प्रॉफिट कितना है? टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 90,000. डन. नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन by notional profit brought down. notional profit brought down कितना है? 90,000. अब ये 90,000 को हमको to be transferred to P&L, to transfer to reserve, to transfer to profit and loss account, to transfer to reserve account. Done? चलो अभी करो ट्रांसफर. कितना वर्क कंप्लीटेड है? देखो परसेंटेज देखना है यहाँ पे. परसेंटेज कितना है? मोर देन 50% है. बराबर? तो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 2/3. तो अभी फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं. नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड. नोशनल प्रॉफिट कितना है? 90,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 4,80,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना जाएगा? 45,000. रिजर्व में कितना जाएगा? 45,000. Done? Amount transferred to profit and loss account 45,000. Amount transferred to reserve. So profit and loss account के credit में आएगा by contract account 45,000. बराबर? बराबर ना? 45,000 ना. और रिजर्व कहाँ पे आएगा?
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 45,000. डन. अब P&L क्लोज कर देते हैं. कितना प्रॉफिट है P&L में? 2 नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेके जाना है. बराबर. बस लायबिलिटी में है. नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 32,000. ओके. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली एडजस्टमेंट ऑफ WIP बाकी है. वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस शीट के एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस लेके आना है. वर्क इन प्रोग्रेस. कैश है ना सर, कैश हाँ कैश रिसीव्ड. हाँ 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 कॅश रिसिव्ह करायचं त्याचीच ऍडजस्टमेंट बाकी. 3 लाख रुपये ना गणेश? यू आर टॉकिंग ऑफ दैट 3 लाख रुपीज ना? हो सर. यस 3,000 ना सर. वही 3 लाख का करना है. अभी आवाज देखो गणेश का कितना क्लियर आता है मुझे. वर्क सर सर्टिफाइड. बट वर्क कैश सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड इनर कॉलम 4,80,000. वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 15,000. कितना है? ठीक है. 4 लाख इनर कॉलम 4,95,000 लेस कैश रिसीव्ड 3 लाख रुपया. बराबर. 3 लाख रुपए का कैश रिसीव्ड किया है, वो यहाँ से एडजस्ट कर लिया. लेस सर है. बट वी हाँ 3,60,000 ना. सॉरी 3,60,000 3,60,000 है सर. 3,60,000 किधर है? 75% ऑफ. ना 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 दैट वो 3,60,000 ट्रायल है. बैलेंस मध्ये 3 लाख आहे. दैट इज न ये नहीं ट्रायल बैलेंस का 3 लाख रुपया. हाँ अमाउंट रिसीव्ड वो अमाउंट रिसीव्ड है 3 लाख रुपया. ठीक है. सो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 4,95,000 माइनस 3 लाख. हाँ काय झालं? हाँ बैलेंस शीट टैली हो गया. खत्म. सर क्लोजिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ले लिया नहीं है क्या? 30,000 और 4,000 34,000 ले लिया ना क्लोजिंग स्टॉक. एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. टैली इंटरेस्टिंग था पक्का? हु इज फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? किसको क्या एलिमेंट समझ में नहीं आए? सर ते माझ्यासाठी न्यू होतं जे आपण सगळं PL ला ऍडजस्ट केलं ते. सॉरी सर जे आपण PL ला ऍडजस्ट केलं ना ते मला थोडस ट्रिकी वाटलं सर. आपण काय केलंय? डेप्रिसिएशन 3 मंथ्सचं डेप्रिसिएशन आणि
एक्सपेन्स विच वॉज नॉट ऍब्झॉर्ब बाय द कॉन्ट्रॅक्ट, हां ती कन्सेप्ट मला थोडी न्यू वाटली सर माझ्यासाठी. ते जरा डिफिकल्ट वाटलं. हा ओके सर मी ते फर्स्ट टाइम बघितलं. नाही नाही ठीक आहे ना. कंपनीत खर्च किती झाला आहे? 47,000. ॲज पर ट्रायल बॅलन्स इज द कंपनी लेवल. कॉन्ट्रॅक्ट इज पार्ट ऑफ दॅट. कॉन्ट्रॅक्ट इज पार्ट ऑफ. तुम्ही दोघं बाजूला बसाल. उठ तू उठ रे तू उठ तू तिकडे बस तू. तुझं स्वतःचं नुकसान करून घेशील त्याचं करशील तू. त्याला लॉस नको. उठ तिथून. आणि अजिबात जवळ बसायचं नाही दोघांनी. तू ते जाऊ दे ते पुस्तक त्याला वाहिले तू त्याला पुस्तक ते दान केलं तू त्याला ते पुस्तक जातं बस. दोघं जण इतके मस्त चबर चबर चालू मागच्या खुर्चीवर पण बसले तर. काय डिस्कस करता काय कळत नाही. दिवसभर बरोबर असतात ना 2 तास असतात ना. सी द ट्रायल बॅलन्स इज ॲट कंपनी लेवल. सॉरी आय डोंट वॉन्ट टू. आय वॉन्ट टू मेक युअर करियर्स. So at trial balance is at company level. So company level expenditure is 47,000. Now after this 47,000, company contract has absorbed how much? 45,000. So 2,000 will go to profit and loss account. Yes or no? See contract account after doing everything adjustment of contract, जहाँ पे जो profit and loss account में transfer होके ये इधर ही आ रहा है 45,000. बराबर. So the amount which is not absorbed by the contract account will go in profit and loss account. जैसे हमारा loss of material है. Oh, ये disconnect हो गया. Why disconnected? हाँ होता असेल. नाही तू बोलतोय होता असेल बाबा. नहीं वाईफाई गया है इसका. हाँ क्या पण इकडे डिस्कनेक्टच झालंय पूर्ण. जा बरं त्यांना कोण कोण सांगेल त्यांना डिस्कनेक्ट न करू. वायफाय गेलं. पासवर्ड नाही रे वायफाय गेलं. वायफाय कसं का? रोज होतं का असं? हां तुला उठवलं तिकडे बसवलं तूच काहीतरी केलं. नाही थांब थांब बाबा. ते लोक त्रास त्यांना त्रास होईल. काय करायचं आता याचं? व्हॉट टू डू? नाही नाही बघ ना खाली जाऊन बघ ना कोण आहे. नाही तर कॉल कर. नाही तर इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता. बोलू नको आणू. वायफाय का बंद झालं विचार ना. कोणतरी व्हॉट्सअपवर ग्रुपवर टाकून दे ना कोणीतरी. डिस्कनेक्टेड इंटरनेट डिस्कनेक्टेड कोणतरी टाकून दे. ऑफिस इंटरनेट डिस्कनेक्टेड टाकून दे. पीपल विल गेट डिस्टर्ब अदरवाइज. बंद केलं होतं का? बंद केलेलं आहे. डिस्काउंट नेटवर्क डिस्काउंट कोण लिहिते?
क्या चेक करने का? वी आर चेकिंग. हाँ, अरे रखने चाहिए. क्यों? कौन बटन बंद करता है क्या? ये जगह रे TP8 TP लिंक ना. Doesn't look good also. No internet. नो इंटरनेट आहे. अरे इथं कनेक्ट झालं पाहिजे राजा. असं काय करतो तो? नाही होते ना कनेक्ट. नो इंटरनेट. अरे ते इथं डिस्कनेक्ट. नो इंटरनेट आहे ना. मी पण कनेक्टेड आहे. अरे नाही चालत रे बाबा. इथे तर हे बघ गेलं ते झोपलं. वॉचमॅन नाही आहे का ना? वॉचमॅन नाही आहे का जागेवर? वॉचमॅन नाही आहे जागेवर? सगळं व्यवस्थित चालू असताना काहीतरी गडबड होती. बट दिस प्रॉब्लम वॉज इंटरेस्टिंग. गुड पार्ट इज दैट आवर प्रॉब्लम वॉज कंप्लीटेड. अभी जिसका अंडरस्टैंडिंग. हाँ बोलिए ना. सॉरी, बुक्स मिस्टेक है. बुक इज मिस्टेक. चॅलेंज टू बुक्स. पुस्तकाचं चुकलंय. हाँ चॅलेंज. क्या करने का यार अभी? हाँ नहीं, 5 कल भी तो जल्दी गए थे. Illustration number 19 is for homework. Illustration number 19 is for homework. काय झालं? काय बटन बिटन बंद केले खाली? कोणत्या? हा, कोण आहे ना जोशी सर? अरे काय बंद करून आले? इथे आमची झोप उडाली. हा,
Oh, okay, internet is back. So finally we are again on the track. OBS को क्या करना है अभी? OBS चालू है, ऑटोमेटिकली चालू हो गया OBS? हाँ, OBS तो चालू है. चलो, ऑनलाइन फ्रेंड्स, we were having some, you were having some doubts, right? क्या हो गया है? Are you able to listen me, Sukanya? Hello? Yes sir, audible. Okay. So, चलो see, as per trial balance, so illustration number 19 is for homework. You will be able to do it. कोई problem नहीं, trial balance related है. Now coming to our this problem, कौन सा था? 17. So trial balance में expenses company के लिए level पे कितना है? 47,000. Out of this 47,000, 45,000 is absorbed by contract. So 2,000 will go to general, मतलब profit and loss account. Profit and loss account में पूरा तो impact तो जाना चाहिए ना. यहाँ से 45, यहाँ से 2 हो गया 47 completed. Yes or no? ठीक है. Yes sir. In the same way depreciation का भी वैसा ही है. पूरा depreciation 25,000 का है. Contract में कितना गया? 20,000. Profit and loss account में 5,000. 25,000 हो गया. ये जो लॉस हो गया मटेरियल का, ये कॉन्ट्रैक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं किया, बट लॉस हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा. ये 45,000 है प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L. नाउ दिस इज कमिंग टू ओरियर ट्रांसफर टू P&L. ओके, दिस रिजर्व 45,000, दिस इज रिजर्व, लायबिलिटी के यहाँ पे रिजर्व में आ जाएगा. ओके, नाउ ये सब गोलमोल करके ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया कितना? 32,000, विच विल गो टू द लायबिलिटी साइड फॉर 32,000. नाउ व्हाट, इसमें एडजस्टमेंट जो अंडरस्टैंड नहीं हुआ क्या है? नथिंग. तो WIP में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस 4,95,000 था, उसमें कोई इशू नहीं अंडरस्टैंडिंग में. उसमें से जस्ट कैश रिसीव्ड माइनस कर दिया 1,95,000. नाउ मॉड्यूल समटाइम्स काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में क्या करते हैं? रिजर्व यहाँ से माइनस कर देते. इट इज जस्ट रिड्यूसिंग द बैलेंस शीट साइज. कैसे? यहाँ पे लेस रिजर्व 45,000, यहाँ से मैं करूँगा लेस रिजर्व 45,000. It's one and the same thing. 4,95,000 minus 3 lakh minus 45,000. हो गया टैली? कोई भी टेक्निक से जाओ, it doesn't make matter, but it doesn't look good by accounting terminology. That's the reason I always show it like this. इससे क्या होता है? बैलेंस शीट का साइज भी बढ़ जाता है थोड़ा. एनी क्वेश्चन? आई बिलीव आई कुड एक्सप्लेन यू दिस. सुकन्या? Yes sir, understood. This time understood. बोलो. हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी तो एक्सपेंस अकाउंट है ना. ये 20,000 और ये 5,000 हो गया ना, 25,000 तेरा. यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना. पूरा 25,000 का डेप्रिसिएशन है. हाँ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कुछ नहीं डेप्रिसिएशन देने का. कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा बहुत प्रॉफिट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट से. ऑब्वियसली. हाँ 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 हाँ. ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं कंपनी. एक कंपनी के 10 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग जगह पे आएगा.
जो एसेट है, को कभी इधर 3 महीने यूज किया, कभी इधर 2 महीने यूज किया, कभी उधर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में उतना उतना डेप्रिसिएशन जाना चाहिए ना, और आइडल पड़ा रहा तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो जाके P&L में जाके बैठेगा आइडल टाइम का। डेप्रिसिएशन तो पूरा लेना ही है ना। मानो हमारा डेप्रिसिएशन इज 10,000 रुपीज, सो एसेट वॉज 2 लाख का एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, 2.5 लाख का कर लेता हूँ, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उस पर 10% डेप्रिसिएशन है 2,500। सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, कॉन्ट्रैक्ट 4 ऐसे 4 कॉन्ट्रैक्ट चालू है। तो यहाँ पे 2 महीने के लिए यूज किया, यूज फॉर 2 मंथ्स, यूज फॉर 2 मंथ्स, यूज फॉर 4 मंथ्स, नॉट यूज्ड। सो कितने महीने का यूज होगा ये कॉन्ट्रैक्ट पे? 8 मंथ्स के लिए, बराबर। टोटल यूज 8 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन जाएगा 2 महीने के लिए? सो 25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, बराबर। ये कॉन्ट्रैक्ट पे, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भी उतना ही जाएगा, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे 4 महीने के लिए जाएगा। इधर कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन जाना चाहिए, उसने वो प्लांट यूज ही नहीं किया, तो पूरा डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट पे एब्जॉर्ब कितना हो गया? 16,600। लेकिन डेप्रिसिएशन है कितना? 25,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना पड़ेगा ना, बिकॉज एसेट यूज नहीं किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट ने यूज नहीं किया। तो कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? 25 माइनस 60। मानो ये कॉन्ट्रैक्ट ने भी 1 महीने के लिए यूज किया, यूज्ड 1 मंथ, तो 1 महीने का आएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। सो P&L में कितने जाएगा? 6,250। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके। सो इलस्ट्रेशन नंबर 19 इज फॉर होमवर्क। 18 हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पे करेंगे, 18, 19। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। 1 मोर लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट नाउ। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ बचा नहीं है अभी, ट्रायल बैलेंस तक लेवल का हमने सॉल्व किया। If you could solve illustration number 19 by your own, it shows that your speed is very good for understanding purpose. And it will show that you are good in accounts also. ठीक है, चलो let's stop over here today's lecture. किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ।